کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے۔ ارے پر کنز ایمان بریلی والے کا، پر کنز ایمان بریلی والے کا۔ معزز سامعین اکرام، لعنت ہو اس دیوبندی پر اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ حرام خور دیوبندی ارشد بہت ہی بڑا جھوٹا مکار شیطان ہے۔ یہ بولتا ہے کہ پہلے میں دیوبندی سے بریلوی بنا اور میں اب بریلوی سے دیوبندی بن گیا ہے۔ اس کی پوری آڈیو آپ سنیں گے تو اس میں پوری آڈیو میں یہ جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اس کی جو دیوبندی ہے، پوری دیوبندی اس کی جھوٹی پر ہی ٹکا ہوا ہے، اس کی قوم۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں گے تو آپ حضرات کو پوری بات معلوم پڑ جائے گا یہ کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے۔ اس لیے ہمارے نور حسن بھائی نے اس کی جھوٹی مکاری پر بھی گالی دیا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو ہیلو، جی مفتی ارشد صاحب، کیا حال ہے؟ دعائیں آپ کی۔ کیا نام ہے آپ کا اوریجنل؟ اوریجنل جی اوریجنل میں مجھے یہی نام ہے جو اچھا وال پیپر پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا اوریجنل میں یہی نام ہے؟ اوریجنل میں یہی نام ہے، ہاں۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ تو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ علماء دیوبند سے میں تعلق نہیں، میں بریلی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اب توبہ کی۔ اب توبہ کر لی ہے؟ توبہ کر لی ہے، ہاں۔ اچھا شادی شدہ ہیں آپ؟ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اچھا شادی شدہ نہیں ہیں۔ اچھا آپ کے جو ماں باپ تھے وہ بھی بریلی بھی تھے؟ وہ بھی تھے۔ اچھا یعنی ان کو بھی آپ میں نے تبدیل ہوئے ہیں، بریلیوں سے نکلے ہیں؟ نئے بریلی سے نہیں نکلے ہیں، اور دراصل ہم بریلی بنے تھے، پھر میں نے سب گھر والوں کو بھی توبہ کرائی اور خود بھی توبہ کی۔ یعنی پہلے جو آپ کے باپ دادا پردادا تھے وہ سب کے سب دیوبندی تھے؟ نہیں دیوبندی تھے۔ ہاں وہی تو بول رہا ہوں، آپ کے باپ ہاں دادا پردادا لکڑ دادا یہ سب کے سب جو ہے دیوبندی تھے؟ دیوبند، ہاں دیوبندی تھے۔ چلیے آپ اپنے گھر میں کسی سے بات کرا سکتے ہیں میری؟ کیوں؟ بات کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس بات کی۔ میں مدرسے ہوں۔ جی مدرسے میں ہیں؟ ہوں۔ اچھا تو چلیے، ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، آپ نے جو اپنے وال پیپر پہ لگا کے رکھا ہے رضا کی مار دیوبندی بیمار، 2 دن ہو گئے مجھے، 2-3 دن ہو گئے مجھے توبہ کی ہے بریلیت سے۔ اچھا 2-3 دن ہو گئے ہیں بریلیت سے توبہ کیے ہوئے؟ بالکل 2 دن یا 3 دن۔ خدا کی قسم کھا کے بولیے کہ آپ کو 2-3 دن ہوئے ہیں بریلیت سے توبہ کیے ہوئے؟ 2 دن ہو گئے۔ کھائیے خدا کی 2 قسم۔ دن یا خدا کی قسم۔ اچھا تو آپ مفتی ہیں نا؟ ہمارے اس میں بہت بدعت ہوتا ہے، بہت مطلب خرافات ہوتے ہیں، بریلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے یہاں بدعت ہوتی ہے بریلی میں؟ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ میں رہنے والا ہوں جموں کشمیر کا۔ آپ جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں؟ جی۔ اور بریلی کی بدعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہیں سے کیمرہ لگا ہوا ہے کیا؟ بریلی کی بدعت نہیں، بریلی والوں کی، ہماری بھی یہاں بریلی والے بہت ہیں نا۔ اچھا تو بریلویوں کی وہ کون سی بدعتیں ہیں؟ بہت سی بدعتیں ہیں، جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور علماء دیوبند پہ ناحق بھونکتے ہیں۔ آپ نے مفتیت کہاں پڑھی ہے؟ میں نے مراد خدا آباد۔ کی قسم کھا کے بولیے گا، مراد آباد میں کون سا مدرسہ؟ سچ بولتا ہوں میں، سچ۔ خدا کی قسم کھا کے بولیے، مراد آباد میں کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں آپ؟ اور جو احمد رضا خان صاحب جو تھے نا، چال بازی کی ہے اکابرین دیوبند کو، اس نے ناحق دیکھیے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دیجئے۔ آپ دیوبندیوں سے نکلے ہیں تو آپ اپنا بتا دیجئے۔ نہیں بھائی، آپ اپنا بتا دیجئے، یا پھر آپ مجھ سے پوچھیے۔ میں نے بھی دیوبندیت کو چھوڑا ہے، میں بھی پہلے سنی حنفی بریلوی تھا، پھر دیوبندیوں کے چکر میں پھنس گیا، دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیوبندیوں کو صحیح سمجھتا تھا۔ آپ کو تو کیا چیز؟
अल्लाह ने आपके हिदायत नहीं रखी थी आपकी किस्मत में। अच्छा ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आपने जो देवबंदियत कबूल की है और अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी को जो छोड़ा है, उसकी वजह क्या है निकलने की? क्या आला हजरत ने मज़ार पे जाके सजदे करने को कहा है कि मज़ारों पे जाओ और सजदा करो? जी मुफ्ती साहब, आवाज निकालिए जरा जोर से, फोन काट के भागिएगा नहीं। हेलो, अरे भाई नेटवर्क में आ जाएं, अगर नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ तो फोन काट के नहीं जाइएगा मुफ्ती साहब। आ रही है बात मेरी समझ? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पर जोर से बोले, जरा नेटवर्क में आ जाएं। जोर से मैं बोलता हूँ। जो अहमद रजा खान ने फतवा दिया है ना अकाबिरीन उलमाए देवबंद पर, आला हजरत ने फतवा नहीं दिया, बल्कि अरब और अजम के उलमा ने फतवा दिया है। नहीं, अरबो अजम के उलमा ने फतवा दिया है, लेकिन अहमद रजा खान ने अकाबिरीन देवबंद की किताबों को मतलब काट काट के मुख्तलिफ जुमले कुफ्रिया जुमले निकाल के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बात है ये। नहीं 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 नहीं, झूठ बात नहीं है, सच बात है। मैंने तहकीक की बरेलियत में भी और देवबंदियत में भी। क्यों आप मुझे नहीं बता, आप मुझे मत ये चालबाजी सिखाओ, मैं भी बरेली का। अच्छा, तो आला हजरत ने क्या लिखाया वहाँ, क्या दिखाया वहाँ, जरा बताएं। उसने अकाबिरीन देवबंद की किताबों में मुख्तलिफ जगहों से कुफरिया टुकड़े निकाल के कुफरिया हुई थी। बज़ाहिर है कि जब बीच बीच में हम पूरी इबारत पूरी बात नहीं उठा के लेंगे, बीच बीच में लेंगे तो वो क्या कुफरिया इबारत तो बननी ही थी। ये बताइए, सामने ये बताइए के उलमा के सामने पेश की। फिर उन्होंने वो अकाबिरीन देवबंद ने जाके उनको अपने अकीदे बयान किए। फिर उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब लिखी। किसने? ठीक बात है ना। फिर किसने लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद एक किताब है जो उन्होंने अकाबिरीन देवबंद ने फिर हरमैन शरीफैन के उलमा को दिखाई कि हमारे अकायद हैं। सुने अल मुहन्नद अल मुफन्नद, ये आपकी किताब है ना? मुहन्नद अल मुफन्नद किताब। अच्छा, ये आपकी किताब है? हमारी किताब है। आप मानते हैं इसको? हाँ मानते हैं। अच्छा, आप मानते हैं? सच में मानते हैं आप? सच में मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, तज़किरतुल खलील भी आपकी किताब है ना? मुझे इतना मालूम नहीं है वो किसकी लिखी हुई है, और मैंने पहली मर्तबा नाम। अच्छा, फतावा रशीदिया भी तुम्हारी किताब लिखी हुई है ना? हमारी किताब है ना? हाँ, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब। उसमें लिखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ पर कादिर है, झूठ बोल सकता है। तो वही उसने अहमद रजा खान ने चालबाजी की है। देखिए, मेरी आपसे बात हो रही है, आला हजरत ने कोई भी चालबाजी नहीं की। ये चालबाजी आपकी है कि यहाँ खुदा की कसम खा के भी झूठ बोल रहे हो। नंबर है ना आपका, ये पर्सनल नंबर है ना आपका? किसका? हाँ, मेरा ये पर्सनल नंबर है। ठीक, 5 मिनट के बाद मैं आपको। अरे नहीं मुफ्ती साहब, आप भी मुफ्ती हैं, ठीक है? ये आपने किसी बड़े मुफ्ती को लेकर आइए जो पहले से नहीं, मैं किसी को नहीं लाऊंगा, मैं यहीं से आपको फोन करूंगा। नहीं, अरे मैंने फोन किया है, आपको दिक्कत क्या महसूस हो रही है? आप बात करके जाइए, भागिएगा नहीं। खुदा की कसम खा के आपने झूठ बोला है यहाँ। यहीं से आप नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? यहाँ से और वहाँ से अभी बात करो यहाँ। अभी मैं आपको फोन करता हूँ। बात करो यार, भागो मत। भाग क्यों रहे? बरेली शेख का बात मुंह में भर गया क्या? भाग रहे हो, मुफ्ती होकर भाग रहे हो गांडू, मुफ्ती होकर भाग रहे हो। क्या पढ़ा है तुमने? अभी बात करूँ? अरे मुफ्ती होकर भाग रहे हो? 5 मिनट इजाजत। बात करो यार, यहीं मुफ्ती होकर भाग रहे हो, शर्म नहीं आ रही? एक आम इंसान से बात कर रहे हो, भाग रहे हो मुफ्ती होकर। झूठे मक्कार शैतान, और आला हजरत की तरफ बदगुमानी पेश कर रहे हो। उन्होंने झूठ बांध दिया। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यहीं रह के बात कर। तूने तज़किरतुल खलील का इनकार किया है ना? फतावा रशीदिया का तूने इकरार किया है, इनकार नहीं किया। उसी से मैं तेरे बातिल अकायद की धज्जियां उड़ाऊंगा अभी तेरी, इंशाअल्लाह, ठीक है? इनकार कब किया मैंने? इनकार मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है उसकी। हाँ, तुझे मालूम नहीं है, मगर तज़किरतुल रशीद का तो मालूम है ना, वो फतावा रशीदिया का। वो तो हमारी किताब है। ठीक है, तुम्हारी किताब है, उसमें माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ झूठ का गुमान किया गया। पहले अहमद रजा खान के उस कुफ्र पे बात कर जो उन्होंने उस किताब के अंदर हुस्सामुल हरमैन के अंदर लिखा है कि जो इनके कुफ्र में शक करेगा वो काफिर है, ठीक है ना? लिखा है ना उनको। मैं थानवी को काफिर मानता हूँ, गंगोही को काफिर मानता हूँ, ननौतवी को काफिर मानता हूँ। बोल अब क्या कहेगा?
तो अहमद रजा खान तो अपने ही फतवे से खुद काफिर साबित होता है। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तू साबित करके दिखा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन ने उसने हुस्सामुल हरमैन के लिखा है कि जो उनको काफिर न कहे वो खुद काफिर है। जब उसने मौलाना वो फरंगी महली के पास इबारत लेके गए, वो भी बरेलवी था, अहमद रजा खान उसके पास गया कि इबारत अकाबिरी ने देवबंद की इबारत उनके सामने पेश की, तो उसने कहा मुझे तो इसमें कोई कुफ्र नजर नहीं आता है, मुझे तो इसमें कोई कुफ्र नजर नहीं आता है। फिर अहमद रजा खान ने उसको काफिर नहीं कहा बल्कि दोस्ती बरकरार रखी। क्या उस पे वो हुस्सामुल कुफ्र का फतवा उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है, ठीक है। पहले तो अपने कुफ्र को बचा, अपने थानवी को, ननौतवी को, गंगोही को बचा। इसी पे बात करो। अबे हदीस कहाँ भाग रहा है, भागने का मौका नहीं दूंगा। नहीं अहमद नूर हसन से बात हो रही है तेरी, ठीक है। बड़े बड़े देव के बंदरों मुफ्तियों को धूल चटाता हूँ मैं। अभी तू नूर हसन को जानता नहीं है, मैंने तुझे इसीलिए कॉल किया है। तेरा जो बंदरबाजी, जैसे बंदर कलेबाजी खाता है ना और घोड़की दिखाता है, उसी तरह मैंने चालबाजी तेरी देखी ग्रुप में। तेरी वॉलपेपर आईडी तेरे वॉलपेपर पे लगा है कि रजा की मार, देवबंदी बीमार, और तू मेरे साथ बात करना। अबे शैतान, ये जो दोगली पॉलिसी तू दिखा रहा है ना, ये मैं अब से नहीं काफी टाइम से जानता हूँ। देवबंदी ना गिरगट की तरह कलर बदलते हैं, गिरगट की तरह रूप चेंज करते हैं। और गिरगट तो 7 रूप लगेगा। सुन, देवबंदी जो है ना वो बामन रूप बदलते हैं, घेरगट तो सिर्फ बकेगा, इसीलिए तो मैं तब्दील हुआ। नहीं, इन गालियों की वजह से मैं तब्दील हुआ। मैं जब ठीक से तुझसे बात कर रहा हूँ तो भाग क्यों रहा है? भागे मत, मैं अदब एहतराम से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, भाग क्यों रहा है? इस बात का जवाब दे मैं मुझे पहले। हाँ तो जो कमीन के बच्चे जिसने कुफ्र किया है उस पर कुफ्र का फतवा लगा है। अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या मामला है, क्या नहीं है, और जिसने लिखी है जिसने नहीं लिखी है वो बात की बात है, कौन लिख के गया है, ठीक है। बात नहीं है, बात शैतान ऐसी छोटी बातें लिख दी गई हैं आला हजरत की तरफ, ठीक है। अरे शैतान के बच्चे, तू मुझे देख, तूने अल मुसन्नद को कबूल किया है। अरे सुन ना यार, अहमद रजा खान के कुफ्र पे पहले फतवा लगा कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जो झूठ का शायबा भी माने वो काफिर है, वो यार झूठ का गुमान करने वाला काफिर है, तू और तेरी जमात भी काफिर है। अहमद रजा खान को कुफ्र से निकाल पहले। वो मोमिन है, अल्लाह का वली है। तेरे थानवी ने उनको मोमिन माना है, मुसलमान माना है। तेरे देवबंदी बुजुर्गों ने मुसलमान माना है, अल्लाह का वली माना है, आशिक रसूल माना है। वली किसने माना है उसको? एक नंबर का चोर। ये बता, एक नंबर का चोर है अहमद रजा खान। सुन देवबंदी मुफ्ती, सुन, तू आला हजरत को क्या मानता है? सुन देवबंदी मुफ्ती, तू आला हजरत को क्या मानता है? पहले तू आला हजरत को क्या मानता है? से तौबा की है। अबे शैतान, तूने बरेलवे से तौबा की है? मैं तो मुझे ये बता कि आला हजरत को तू क्या मानता है? मैं उसको काफिर मानता हूँ। अच्छा, तू ही मानता है या तेरी जमात के बड़े बड़े काफिर भी मानते हैं? उसी के फतवे से मैं उसको काफिर मानता हूँ। माज़अल्लाह, साले सुअर, तू ये बता, तू अपनी जमात के लोगों को क्या मानता है? काफिर मानता हूँ। अच्छा, थानवी को भी काफिर मानता है? कुफ्र से निकाल। अच्छा, थानवी को भी काफिर मानता है? किसको? थानवी को। थानवी को मैं बहुत बड़ा मुसलमान समझता हूँ, कायद हैं? थानवी हकमुल उम्मत थे। अरे वो तो जानी था, जिना से पैदा हुआ था, वो तो अपने बाप की भी औलाद नहीं था यार। अहमद रजा खान को पहले कुफ्र से निकाल तू। अरे वो बात ठीक है, तू हाँ उसी पर बात कर। तूने आला हजरत को काफिर कहा है ना, तो तू ही सिर्फ काफिर मानता है या तेरी जमात के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं अपने फतवे से काफिर साबित होता है? देख रहे हैं हजरात, ये देवबंद का मुफ्ती है साला सुअर, और ये कैसे भाग रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। अरे हम भी देवबंदी को काफिर मानते हैं, थानवी, ननौतवी, गंगोही, हम भी काफिर मानते हैं, हमारे अकाबिर भी काफिर मानते हैं। मगर ये वो सुअर है, तौबा की है, मगर ये वो सुअर देवबंदी हैं जिनके अकाबिर तो आला हजरत को मुसलमान मानते हैं, आशिक रसूल मानते हैं, मगर ये सुअर कहते हैं कि आला हजरत काफिर है। माज़अल्लाह, इनकी तहकीक आज निकल के आई है। और थानवी ने अपनी जिंदगी में आला हजरत को मुसलमान माना है। बताइए, मैं उसको बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरे फतवे से तेरा थानवी काफिर हो गया, बहुत अच्छा किया तूने, आला हजरत को काफिर कहा और अपने थानवी को भी काफिर कर दिया, क्योंकि मेरी बात सुने। थानवी से सुन, भागना मत। मेरी बात सुने क्या? फोन काटूंगा। भागना मत। आला हजरत का जब विशाल हुआ, और शैतान के बच्चे सुन, आला हजरत का जब विशाल हुआ तो आला हजरत के ताल्लुक से
देवबंदी ने थानवी से जाके कहा, देवबंदी मुरीद ने थानवी के, कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का विसाल हो गया है, इंतकाल हो गया है। तो थानवी को अफसोस हुआ, बड़ा जो है वो रंजीदा हुआ और दुआ करने लगा। और रंजीदा नहीं होने दो, लेकिन मेरी एक बात सुनो वरना मैं फोन कट कर दूंगा। चल जा भाग ले, तेरे मुंह में बरेली का बांस भर गया, तू जवाब भी नहीं दे पाएगा। तूने काफिर को, थानवी काफिर को काफिर साबित कर दिया दोबारा से। काफिर नहीं, मैंने अरे काफिर है थानवी, थानवी हजार बार काफिर है। सामुल हरमैन के अंदर अहमद रजा खान खुद अपने अच्छा ये बता, अच्छा सुन, इसके बाद कब बात करेगा और किस मौजू पर बात करेगा, बोल। जिस मौजू पर तू सुने। खान के कुफ्र पे बात करूंगा। अहमद रजा खान के कुफ्र पे बात करूंगा। अभी बात कर ले फिर। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपके साथ। हाँ तो चल फिर, चल तू मुझे ये बता कि तू तो आला हजरत को काफिर मानता है, मेरी बात पहले सुन, मेरी बात पहले सुन, पहले बात को सुन। तूने बोल दिया ना कि आला हजरत को तू काफिर मानता है। तूने इसलिए काफिर माना कि फरंगी महली जो है कोई, तूने उसकी बात पेश की। अल्लाह बेटा जाने वो झूठी है या सच्ची। चल मैं तेरी उस बात को सुन, मैं तेरी उस बात को लिए लेता हूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं तेरे ही फतवे से तेरे थानवी को, ननौतवी को, गंगोही को काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मैं भी तेरे फतवे से उसको काफिर साबित करता हूँ ना, तू मेरी बात को क्यों नहीं सुनता है? तो सुना। देख यार, वो हुस्सामुल हरमैन आपकी किताब है ना? हाँ बोल। आपकी किताब है ना वो? अरे बोल ना। हाँ खोल वो किताब, बोल आगे की बात बता और हवाला मेरे पास भेज दे। इस कायनात का बदतरीन इंसान मुजद्दिदुल बिदअत मौलाना बिदअती अहमद रजा खान अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन 20 पे लिखते हैं, गौर से सुनना, ठीक है? सफा नंबर 20 पे लिखते हैं कि उलमाए देवबंद के बारे में लिखते हैं कि सब के सब काफिर और मुर्तद हैं, बइजमाई उम्मत इस्लाम से खारिज है। सुन रहा है? सुअर की औलाद, अगर तूने ये सब दिखा दिया कि जितने भी देवबंदी हैं सब के सब काफिर हैं, तो तेरी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी बात सुनेगा? हम तमाम देवबंदियों को काफिर नहीं कहते। तेरे सुअर जो 4 अकाबिर हैं, ठीक है, 4-5 जो तेरे अकाबिर हैं, बड़े बड़े शैतान, थानवी, ननौतवी, गंगोही, आशिक राही मेरठी, खलील अहमद अमैठवी, ये लोग हम इनको काफिर मानते हैं और बदतरीन काफिर मानते हैं। और इस कायनात का जो बदतरीन झूठा है ना, वो अहमद रजा खान। अबे सुअर की औलाद, साले देव का बंदर, देव का पुजारी, हरामी, तू कह रहा है कि मैंने 2-3 दिन पहले तौबा की है। पुजारी तुम हो, जाके यहाँ से हज कर। तू कह रहा है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले तौबा किया हो। तूने कुरान की कसम खाली झूठी, माअज़ल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब नाजिल हो जाए तेरे ऊपर। उसने झूठ बोला, जमीन लोग कहो आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब नाजिल हो जाए इसके ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हो जाए इसके ऊपर। कायनात इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की झूठी कसम खाई है। इसका बदतरीन ने जाके हरमैन शरीफ से जाके झूठ बोला। हाँ बोल ना, आगे की बात बता कमीने, आगे की बात बता। तो तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनता है? अरे सुन तो रहा हूँ मैं, झूठ क्यों बोले चला जा रहा है? तूने ये कहा कि तमाम देवबंदियों को काफिर कहा। सफा नंबर तो अगर तूने ये साबित कर दिया कि आला हजरत ने तमाम देवबंदियों को काफिर कहा है, तो मैं तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी बात को, अरे मौजूदा जिन्होंने कुफ्र किया है उनको काफिर कहा है, तूने तमाम देवबंदियों को शामिल कर दिया। जब तू अहमद रजा खान के कुफ्र पे बात ही नहीं करेगा। अरे तूने तमाम देवबंदियों को शामिल किया कि नहीं किया, बता अभी, हाँ या ना में जवाब दे। तूने तमाम देवबंदियों को कहा नहीं कहा कि आला हजरत ने तमाम देवबंदियों को काफिर कहा है? कायनात का बदतरीन झूठा अहमद रजा खान। अरे साले झूठा तो तू है हरामी। तूने अभी ये बात तूने कही अपने मुंह से कि आला हजरत ने तमाम देवबंदियों को काफिर कहा है, मगर आला हजरत तमाम देवबंदियों को नहीं कहा, बल्कि तेरे देवबंदी जो सड़े हुए बदबूदार हैं, जिन्होंने कुफ्र किया है हुजूर की शान में, ओ यार अहमद अल्लाह के रसूल की शान में तौहीन की है, साबित होता है, उनको काफिर कहा है। शैतान कहीं के झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? तुम्हारे अंदर यही खामी है कि तुम बात, अबे सुअर के बच्चे, मैं तेरी बात को सुन रहा हूँ, तो झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? खुद अपने से साबित हो रहा है। चल वो हवाला पेश कर। तेरी माँ ने अगर तुझे जायज नुस्खे से पैदा किया है ना, तो वो हवाला पेश कर। वो हवाला मैं पेश करूंगा। कर हवाला पेश कर। मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है और तेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, तूने मेरे पास मैसेज भी किया है, ठीक है? मक्कार, शैतान,
मुझे अपना नाम बता रहा था रजवी, क्यों बे? हैं? मुफ्ती अरशद रजवी, अरबे सुअर, मुफ्ती अरशद रजवी बता दो, तो शर्म नहीं आई? तौबा की है मैंने, खुदा की कसम खा कि तूने अभी 2-3 दिन पहले तौबा की है। तौबा अहमद रजा खान से कुफ्र के, और है ना, अरे तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्या समझ पाओ अहमद रजा खान उनकी तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? बे शैतान, दुनिया देवंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो आला हजरत को काफिर साबित कर दे। दुनिया देवंदियत की औरतों की बात बता रहा हूँ, किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है देवंदियत की, समझे? जो आला हजरत को काफिर साबित कर दे। तुझ समीत दुनिया देवंदियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो आला हजरत को काफिर साबित कर दे। मैं काफिर साबित करूंगा, तू मेरी बात पहले सुन। मैं काफिर साबित करूंगा अहमद रजा खान को, मेरी बात पहले सुन। तो सुअर की औलाद मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जो आला हजरत को तू काफिर कह रहा है, ठीक है? काफिर है ना, खुद काफिर हुआ है। ठीक है, मैं तेरी बात को मान रहा हूँ, हरामी सुअर, तो तू मेरी बात को सुन। सुअर के बच्चे, तूने आला हजरत को काफिर मान लिया। अब ये बता दे मुझे कि तेरे जो बड़े बड़े शैतान हैं, उन्होंने भी आला हजरत को काफिर माना है या मुसलमान माना है? बस इतना बता दे। और जो किसी काफिर को काफिर ना कहे, मुसलमान माने, उसके ऊपर शरीयत का क्या फतवा लगेगा? सुअर, ये बता दे जरा मुझे। फिर तेरा थानवी, ननौतवी, गंगोही, ये सब के सब काफिर हैं, क्योंकि इन्होंने आशिक रसूल माना है, आला हजरत को मुसलमान माना है, अल्लाह का वली माना है। शैतान सुअर, जाएगा कहाँ बच के? बरेली शरीफ का बांस बना दूंगा मुंह में, समझा? हलक में बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा तेरे, जाएगा कहाँ बच के? तू आला हजरत को काफिर कह रहा है, तब भी फंस रहा है, क्योंकि तू थानवी, ननौतवी, गंगोही, इन सबको काफिर साबित कर रहा है। और उन हरामियों ने आला हजरत को मुसलमान कहा है, मुसलमान माना है, अल्लाह का वली माना है। और शैतान सुअर, तू कह रहा है कि आला हजरत काफिर हैं, तो साले तू आला हजरत को काफिर मानेगा, तब भी तू काफिर है। झूठा है अहमद रजा खान, क्यों? जिसने हुस्सामुल हरमैन वो लेके किताब लेके और उस पाक सर देख रहे हैं जनाब हजरात, ये है सुअर देवबंदी, ये वो बदतरीन सुअर है जो कह रहा है कि बरेलियत से तौबा की है। बहरहाल मैं इसकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है, मगर इसने कहा कि आला हजरत काफिर हैं। मैंने इस सुअर से पूछा कि आला हजरत काफिर हैं, तो जो आला हजरत के कुफ्र को कुफ्र ना समझे, आला हजरत को मुसलमान माने, वो उसके ऊपर क्या फतवा लगेगा? तो खामोश है, चुप है। इस सुअर को मालूम है कि हमारे जो बड़े बड़े शैतान हैं, उन्होंने आला हजरत को अल्लाह का वली माना है, मुसलमान माना है, और उनके पीछे नमाज पढ़ने का भी हुक्म दिया है। ये शैतान जानता है ये सारी चीजें, इसलिए इसके मुंह में जो है आवाज नहीं निकल रही है, इसके हलक में की आवाज इसके हलक में है, बाहर नहीं निकाल रहा है। अरे हम और हमारे उलमा, हम सब के सब आला हजरत से लेके अब तक जितने भी आला हजरत को मानने वाले हैं, थानवी, ननौतवी, गंगोही या मैठवी, आशिक इलाही मेरिडी, इन सबको बदतरीन काफिर मानते हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, समझा? देव के बंदर, देव के पुजारी, देवबंदी मुफ्ती झूठ बोलने आया यहाँ नूर हसन के सामने, वो भी है? अरे जो देवबंदियों की रग रग से वाकिफ है उसके सामने आके झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे मन नहीं मालूम है कि नूर हसन जो है बड़ी अच्छे तरीके से जो है बखिया उधेड़ता है? नूर हसन देवबंदियों की, देव के बंदरों की, है? यहाँ के कलेबाजी खा रहा है, यहाँ के घुड़की दिखा रहा है बंदर वाली, है? अबे शर्म कर। मेरी बात सुन, थानवी के पेशाब में डूब के मर जा, जो उसने अपने बड़े भाई के सर पे पेशाब किया था ना, उसी पेशाब में डूब के मर जा तू, समझा? अहमद रजा खान के मुर्तजा मजदूब की औलाद है वो, समझा? मुर्तजा मजदूब की औलाद है वो, जो उसके नाना के घर आया करता था, समझे? थानवी अपने बाप की औलाद नहीं है, क्योंकि उसने दवा खाई थी, खुजली की बीमारी हो गई थी उसे, और ये समझ के उसने दवा खाई कि औलाद ना हो तो ना हो, अहमद रजा इस बीमारी से बेहतर है कि बे औलाद रह जाऊं, मर अच्छा हो जाऊं, इस बीमारी से शिफा मिल जाए, औलाद ना हो तो ना हो। रजा खान, अहमद रजा तुम बोल। अबे सुअर, तू खुल के बात ही कहाँ कर पा रहा है? खुल के बात ही कहाँ कर पा रहा है तू? है